Namaste ji, namaste. So frustration of contract, or rather discharge of contract by frustration. This is the topic. Section 56 में जाएंगे, Section 32 में जाएंगे. दोनों sections आपने अपने आंसर में मेंशन करनी है. And the most important case law is Satyabrat Ghosh versus Mugniram Bangur and Company. So we'll just go to and refer it as घोष बाबू. अब घोष बाबू जी के साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, बड़ा आसान सा केस है, तो इसको जरा समझ लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा. ये कंपनी है, ये बिल्डर है, लाइक स्टैंडर्ड बिल्डर. इनका कोई ज़्यादा कोई दीन दर मेहमान ज़्यादातर होता नहीं है, बट फिर भी इन्होंने एक प्लॉट काटा. सो देयर वाज अ लैंड इन कोलकाता और व्हाटएवर. सो यू विल हैव टू कुक अप दी स्टोरी विद, आई विल ओनली टॉक अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स, द वंस दैट आर रिक्वायर्ड, एसेंशियल. अगर आपको आंसर खींचना है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू रिमेंबर अ लॉट मोर, मेनी मोर फैक्ट्स, बट दैट इज योर चॉइस. सो देयर वाज अ लेक कॉलोनी स्कीम नंबर 1. इन्होंने उस प्लॉट को नाम दिया कि जी हम इसमें से छोटे छोटे प्लॉट काटेंगे और आपको वी विल सेल दिस टू पीपल. So this was a residential colony. So ऐसे इन्होंने करके प्लॉट काटने शुरू करे. So their contract with people was that we are going to be developing roads, we are going to be developing drains. So what you can do is you can give us a token money, बयाना, earnest money. 101 रुपये आप रखवाइए, 101 रुपये आप रखवा कर आप अपना प्लॉट बुक कर लीजिए, and then pay us the balance amount when we deliver the roads and the drains to you, and then everything is ready. Then you have to give us this amount within 1 month of the payment. So there was a guy called Bijoy Krishna Roy जिन्होंने सत्यव्रत जी को अपना नॉमिनी बनाया. सो ये उनके बिहाफ में क्या प्लॉट इन्हीं को मिलना था, तो यही लड़ने आ गए थे. तो अब हुआ क्या कि जी आपकी रोड्स और ये ड्रेन्स बनने से पहले द गवर्नमेंट, दोज वर वॉर डेज, इन्होंने एक लाइन काट दी. गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ने ऑर्डर पास कर दिया दैट दिस पीस ऑफ लैंड आउट ऑफ दिस प्लॉट वी आर गोइंग टू नीड फॉर आवर ओन पर्पसेस. एंड देन देयर वाज अनदर basically cutting away of the plot which was this. तो दो जगह से ये ले गए. तो then the company was like bloody hell, अब ये इतना सारा ले गए, हमें काम करने का फायदा ही क्या होगा. So we won't be basically now proceeding ahead with this project. So the company informed. So company was very sharif back in those days. Companies were sharif that either you can take your money, that is 101 rupees back within 1 month of the letter in which they informed Mr. Satyabrat Ghosh, or what you can do is you can take the land as is, where is basis pay. We won't be forming any roads, we won't be forming any drains. You handle with the government. ये आपको कब मिलता है कब नहीं, really we don't care. And if you don't take either of these options, this amount जो आपने 101 रुपये हमें दिए थे forfeit. तो बेसिकली लैंड भी कंपनी का वापस, और ये क्या बोलते हैं, सब कुछ उनका, बयाना भी उनके हाथ में आ गया और सब चला गया. अब ट्रबल इज, अच्छा ये बाय द वे टेक लैंड एज इज वेयर इज बेसिस पे ऑब्वियसली आप पूरे लैंड की थोड़ी बहुत पेमेंट तो करेंगे ही ना, जो भी बैलेंस होगी, और उसके हिसाब से आप अपना ले लीजिए विदाउट रोड एंड ट्रेन्स. सो नाउ घोष बाबू सर, नाउ घोष बाबू इज बेसिकली लाइक कंपनी वालों इधर आओ, नाली देकर मुझे जाओ. He wanted what was promised to him. He wanted. He had no problem in paying the money. He had no problem with anything. He said, "Company boss, आप हमें ये वापस दीजिए." And what was the company saying? Company was saying कि भैया ऐसा है, contracts to discharged by frustration. Why? Because Section 56 says that agreement to do an act impossible in itself. We'll just get to that. So now this act has become impossible. Like for example, these orders are there. The government has already taken away our land, boss. Now how do I build roads? How do I build drains? So the contract itself has become frustrated. तो अगर आप law entrance में आपको याद होगा, जिसने क्लैट भी थोड़ा बहुत देखा हो, legal reasoning देखी हो, agreement to do an act impossible in itself is the most common thing that they ask again and again and again. तो इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन है, विल जस्ट कम टू दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ लॉ. विल जस्ट कंप्लीट आवर फैक्ट्स. Trial court said Ghosh Babu is correct. The district judge said Ghosh Babu is correct when the company must have appealed. High court said no, the company is correct. Ghosh Babu, go to hell. Well, then Ghosh Babu is going to Supreme Court, and here we are. And this is now what we're going to basically consider. So the only question that is in the consideration is that whether the contracts to discharge by frustration or not. Now how do we get to that? Section 56 chapter 4 आप mention करेंगे अपने आंसर में, that Indian Contract Act के अंदर. So the first one is, we have already said it, is agreement to do an act impossible in itself. So that is void. So for example, if somebody promises that pay me XYZ money and I'll make you clear due, I'll be in 2 days. Well,
ना, दैट्स बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पर। ठीक है, वो थोड़ी बहुत पफिंग वफिंग, वो बड़े सारे लीगल एस्पेक्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपको भी पता है कि वैसे सब कुछ नहीं होता। तो इनिशियल, अच्छा सेकंड एक्ट में जब आता सब्सिक्वेंट, लेटर से इम्पॉसिबल हो गई एक्ट, कोई आपको कहता है कि जी आज हम दोनों, let's say that you enter into a contract with me and tell me that sir that I will buy your course, and tomorrow something happens to me and I basically go into a coma, god forbid, and then I am unable to complete your course or whatever. So see, subsequently the act has become impossible, since so the contract will become void. So अब ये void जरूर mention कर लीजिएगा आंसर में, voidable नहीं है यहाँ पे, void है। तो when the act becomes impossible, तो अब मैं जैसे for example if I something were to happen to me and I am unable to complete your course, then well the contract will become void. It is stood discharged via frustration, right? Because I cannot now complete the contract because the act has now become impossible. So when the contract will become void, when from the moment that this act becomes impossible. अच्छा, थर्ड में दे रखा है कि नहीं, अगर सामने वाले को रीजनेबल डिलीजेंस से ये पता चल सकता है that he can, he can conclude that, he can find out that the act is impossible or the act will become impossible by reasonable diligence, तो जिसने उसको फंसाया है या जिसको उसने फंसाया है रादर, उसको वो पैसे देगा। तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों के तीनों आप एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 56 से। सेक्शन 32 कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि सेक्शन 56 इज यूजुअली सेक्शन 32 एंड सेक्शन 56 आर रेड टुगेदर, ऑलराइट। तो अब इम्पॉसिबल शब्द के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी एलैबोरेशन करेगी। क्या ये फिजिकल शब्द की बात हो रही है कि इज द एक्ट फिजिकली इम्पॉसिबल टू डू, इज द एक्ट लिटरली इम्पॉसिबल टू डू, और आर वी टॉकिंग अबाउट the impracticality, like the entire thing is now useless. So impossible is basically आपका क्या है कि now it's become impractical, so the act cannot become now possible. अब इसके अंदर आपने एक केस लॉ कोट करना है, which is the doctrine of frustration के ऊपर। क्लासिक केस लॉ is Taylor versus Caldwell। ना Caldwell के अंदर क्या हुआ था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि that there was one person who was renting out halls for the performance of music and for alternate days of the week, and उसको आग पकड़ ली। तो आग पकड़ के अब कॉन्ट्रैक्ट बचेगा कहाँ, क्योंकि जब हॉल ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ से आ रही है। तो अगर आप ये केस लॉ मेंशन कर देंगे तो इट विल बी गुड। एंड आई थिंक इन योर केस मैट थोड़ा सा एलैबोरेटेड है, मैं यहाँ पे तो नहीं डिटेल में जा रहा, दो तीन लाइन ही दी हुई है, तो उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ के इसको जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, थोड़ा सा आंसर अच्छा निकल आएगा। Then now we are going to come to the conclusion of the case that अच्छा, contingent contract क्या होता है? Contingent contract और wagering contract में क्या फर्क है? Wagering is a type of a contingent. Contingent is like, for example, if I say that me teaching you is contingent on you supporting me, that means it is contingent, that means it is dependent on a condition. एंड वेजरिंग के अंदर क्या चक्कर है कि वेजरिंग इज प्योर सट्टा, सो इट इज अ टाइप ऑफ अ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर भी एक कंडीशन तो हमने लगा रखी है, बट उस कंडीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो द कोर डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट एंड वेजरिंग इज कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से दैट यू एंड आई एंटर अगेन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन व्हिच वी आर सिटिंग ऑन द शोर एंड द टाइटैनिक इज सेलिंग एंड आई टेल यू बॉस लुक आई हैव सेंट यू अ कंसाइनमेंट ऑन द टाइटैनिक एंड देन व्हेन इट रीचेस यू यू कैन पे मी। So our personal interest is involved in that contingent contract, because when it reaches you is the contingent condition that it has to happen for you to pay me. So that is a type of a contingent contract. But in the same scenario, let us say that you and I are just sitting on the shore and just staring at the Titanic, and I tell you, ये डूब गई, देखो 5,000 रुपये दूंगा, impossible इसका डूबना। Like for example, see, our interest is nowhere in the happening or whatever happens with the Titanic. मेरा कुछ नहीं उसके अंदर कि मेरा कोई सामान लगा हुआ है या मेरा कुछ उसके अंदर जी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। This is just a pure bet. तो वेजरिंग के अंदर just a pure bet. Contingent is टाइप ऑफ, बेसिकली वेजरिंग इज अ टाइप ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट कंटीजेंट के अंदर हमारा कुछ ना कुछ एक कंडीशन हमने लगा रखी, कॉन्ट्रैक्ट तभी फुलफिल होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो सेक्शन 32 आप मेंशन करेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट लिया गया, वकील साहब ने लिया गया कि जी इंग्लैंड में ऐसा है, इंग्लैंड में जब सिंस हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंग्लैंड से ही उठा के लेकर आ रहे हैं, तो लैंड सेल पे तो फ्रस्ट्रेशन लगती ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज बी बिकम्स द ओनर इन इक्विटी। तो ये आपके जो वकील साहब है वो आगे बढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, वहां पे बी बिकम्स ओनर इन इक्विटी। जैसे ही आपकी बातचीत हो गई, अब उनके वहां पे क्या कानून है मेरे को तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये आपके केस लॉ के अंदर दिया हुआ है कि दे बिकम ओनर एज सून एज कि जी आप पैसे दे देंगे, अब आपसे आप ही ओनर है जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गए। हमारे यहाँ पे इंडिया में कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। कानून कहता है
कि इंडिया में सेक्शन 54 हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता आपका जमीन पे, सिर्फ अभी आपका बयाना हुआ है, वैसा कुछ नहीं हुआ कि जी हाँ जी आज से जमीन आपकी, चलो पैसे देते रहना। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगी, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। इंग्लैंड में है, ये मेंशन कर दीजिएगा अपने आंसर में, इंडिया में नहीं है। तो सेक्शन 54 टीपीए मेंशन कर सकते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। एग्जामिनर होगा वाह यार क्या पढ़ा लिखा आदमी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो बेसिकली जो कोर क्रक्स जिसमें पूरा रेशियो डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात नोट करना, देयर वाज नो टाइम लिमिट ऑफ बनाइंग दिस नाली एंड सड़क बाय द कंपनी। लाइक देयर वाज नथिंग मेंशन कि जी आप आज हमें 101 रुपया दीजिए और अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं सड़क और नाली बनाऊंगा और आपका प्लॉट आपके पास, मेरे पैसे मेरे पास, सब भला चंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये एक टाइम लिमिट है कहाँ? क्या कंपनी ने कोई टाइम लिमिट दी थी कि हम इस टाइम लिमिट में ये करेंगे? फिर एक और फैक्ट जो कि कंपनी के अगेंस्ट चला गया वो ये था कि आपने तो ये नाली सड़क बनाने का काम इन रिक्विजिशन ऑर्डर से पहले तो करा ही नहीं, शुरू भी नहीं किया था। हाउ कैन यू से दैट देयर विल बी एन इनडेफिनिट डिले? सो कंपनी बेसिकली व्हेन इट सेड, कंपनी ने बोला था जी राम राम अब तो हम ये काम नहीं कर सकते। हाउ कैन यू से देयर विल बी एन इनडेफिनिट डिले? रिक्विजिशन का जो नेचर है इट इज टेम्पररी। तो वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट ने कोई परमानेंट एक्वायराइजेशन नहीं करी थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें थोड़े दिनों की रिक्वायरमेंट है, अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने कौन सा बोल रखा था कि मैं 3 महीने में बना के दूंगी? आपका तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड ही रहा। हाँ, यहाँ पे अब आप ये टाइम लिमिट में जाके एक चीज जरूर मेंशन करेंगे कि अगर टाइम लिमिट डल गई होती इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेट से मान लेते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर हम सड़क या 6 महीने या 1 साल के अंदर हम बना के देंगे, और सिंस अब ये इन्होंने हमारे से लैंड हमसे पोजेशन ले लिया है अपने जंग वंग के लिए या कुछ भी जिसके लिए भी इन्होंने टैंक रखने के लिए यहाँ पे ले लिया होगा, तो अब हम कैसे करके दें? क्योंकि ये तो 2 साल के लिए बैठ गए और हमारी तो बात सिर्फ 6 महीने में हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें कहा इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने कौन सी टाइम लिमिट दी हुई थी? ये टाइम लिमिट वाला पॉइंट जरूर मेंशन करना है। तो आपने कौन सी टाइम लिमिट दी हुई थी भैया? आपने तो सीधा साधा ये कहा था कि जी हम तो आपको बना के देंगे। तो वो कहते जब ये यहाँ पे बैठ गए और टेम्पररी नेचर है, इनडेफिनिट डिले तो हुआ नहीं, कभी तो बना के दोगे ही, क्योंकि तुमने तो ये नहीं कहा था कि हम इतने टाइम में ही बना के देंगे। तो भैया ये एक्ट इम्पॉसिबल हो गई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ नहीं। तो घोष बाबू जीत गए। घोष बाबू ट्रायल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले कह रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हाई कोर्ट वालों से। देखा, हाई कोर्ट का डिसीजन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। की पॉइंट टाइम लिमिट। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो क्या क्या मेंशन करेंगे? 56 मेंशन करेंगे, चैप्टर 4 मेंशन करेंगे, सेक्शन 32 मेंशन करेंगे, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल मेंशन करेंगे, इंग्लैंड में डिस्टिंक्शन देंगे, इंडिया में डिस्टिंक्शन देंगे, टाइम लिमिट पे फोकस करके पूरा केस समझाएंगे, और ये भी बता देंगे कि अगर ये टाइम लिमिट होती, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ना, 3 महीने 6 महीने अगर ये होती तो घोष बाबू को नमस्ते कर देती कंपनी। कहती कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टिका ही इसी चीज पे था कि मैं आपको सड़क और नाली बना के दूंगा 3 महीने के अंदर, और अब कैसे बना के दो? तो 2 साल के लिए बैठ गए। लेकिन क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था कि आप कितने टाइम में देंगे, और घोष बाबू वहीं के वहीं कह रहे हैं कि जी पैसे ले लो, मेरे को वो बना कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जी भैया ये टेम्परेरी भी था ये ऑर्डर, इसमें टाइम लिमिट भी नहीं थी, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ गई इसके अंदर? अब hopefully I think frustration and all this jazz is clear to you, right? Take care, and yeah, do consider supporting the channel. The link is in the description. All right, all the very best for your examination. Bye bye.